everyone. Welcome to Apti Plus, the Academy for Civil Services. Today we are here to discuss the UPSC weekly current affairs, and the current affairs will be covered from 8th to 15th of February 2025. The discussion herein will be in the format of MCQ, and one mains question will be discussed with you. Now, let us begin our discussion. So, the first question is, it is also a previous year question. Plus, recently there's a talk about this new asteroid Y34, which has been in news because NASA has said that there are probability that this asteroid might have localized impact as it could hit the surface of the earth. So that's why this question, which has also come in the previous years. So the statement are, asteroid are the small rocky planetoid, while comets are the formed of frozen gases held together by rocky and the metallic material. Asteroids are found mostly between the orbits of Jupiter and Mars, while comets are found mostly between Venus and Mercury. Comets show a perceptible glowing tail, while asteroids do not. So, first thing we have to remove the negative statement, that is which is wrong. तो अब ये तो हमें पता है एस्ट्रॉइड बेल्ट होती है जुपिटर मार्स के बीच में, बट देर इज नो सच बेल्ट फॉर कॉमेट्स. सो योर ऑप्शन स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग. तो आपका ए एंड डी तो आंसर नहीं होगा. द रिमेनिंग इज 1 and 3 एंड वी नो दैट एस्ट्रॉइड्स आपके रॉकी होते हैं, मेटेलिक भी होते हैं. दीज आर रेमिनेंट्स ऑफ प्लैनेट्स, जो भी बच के जो पार्टिकल या टुकड़ा जो प्लैनेट का निकलते हैं, देन दे रिवॉल्व बिटवीन दिस. दैट इज व्हाई दे आर having planetoid nature, or you can say rocky nature, metallic in nature. But comets are gases. These are icy substances which are held together by rocky and the metallic material. So the first statement is correct, and the third statement also is correct. Comets show a glowing tail, जिसको हम कई बार कहते हैं कि टूटता तारा, while asteroids do not. So the answer will be 1 and 3. Now let us also read the discussion about this. NASA has identified this near Earth asteroid 2024 YR4, and this news was covered in Indian Express, though which has chance of impacting Earth in 2032. Earlier also there are few asteroids, near Earth asteroids, which have been uh, detected, and there are missions going on. For example, DART mission of NASA, which is targeting the reflection of the asteroid in the space itself, so that the asteroid do not touch the surface of the earth. Now let's see, with respect to this asteroid, it was detected in 2024 and it has passed the 800,000 kilometer distance from earth, which is twice the moon's distance, and it is observable and will be reappearing in 2028 and will be observable in 2025. एक चीज हमें इस एक्सप्लेनेशन में याद रखनी है कि there is one scale which measures the destruction that could be caused by your asteroid when it hurts the earth, when it impacts the earth, and this scale is known as Torino scale. तो ये भी पूछ सकते हैं. It will tell the severity of the impact from 1 to 10 on the scale. These are the definition for asteroid. They are formed, they are the remnant from solar system, and they are rocky, airless. And comets are made of ice, dust and rock. Comets orbit the sun in elliptical orbit. Comet जो आपके orbit करते हैं वो sun को करते हैं and takes hundreds of years to complete. As comet gets closer to sun, they heat up and release dust and gases, which forms a tail that could stretch millions of miles away from the sun. तो comet किससे बना है आपका? Ice, dust and rock से, as well as ये सन से दूर जाते जाते मेल्ट होते हैं तो हीट रिलीज करते हैं जो कि ग्लो करती है, विच इज कॉल्ड ग्लोइंग टेल. तो ये कॉमेट में मिलता है. नेक्स्ट इज, what is the primary objective of Swalambini program? Recently, Ministry of Skill Development has launched this program in Assam, Guwahati,
So let us see the answer. The answer is to empower the women in Northeast higher education institution with entrepreneurship skills. So this is the objective of this program. Answer is B. Now, let's see the explanation. MSDE, along with Niti Aayog, so there are two organizations involved, has launched Swalambini in Assam, Meghalaya and Mizoram. तो ये 3 स्टेट्स में लॉन्च किया गया है. इट्स अ एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम जहाँ पे हम फीमेल्स को एम्पावर करेंगे, स्पेशली जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में होते हैं, सो दैट दे बिकम बिजनेस रेडी. बिजनेस रेडी मीन्स उनकी मेंटोरशिप करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, सो दे कुड स्टार्ट देयर बिजनेस और स्टार्टअप. एंड what all are the features which we have to remember is that there will be a stage wise entrepreneurial process including entrepreneurship awareness program, EAP, women entrepreneurship development program, faculty development program, and funding will also be provide. तो ये इसके फीचर्स हैं कि इसमें ईएपी है, ईडीपी है, एफडीपी है, प्लस फंडिंग मैकेनिज्म है उनको, और जो सक्सेसफुल वेंचर्स बनेंगे उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा. एंड 10% ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम ट्रेनीज को अलाउ किया जाएगा टू स्टार्ट देयर बिजनेस. ओके, so this was with respect to Swalambini. Now again, some states has raised the news because in budget, center has reduced certain amounts of grants which are allocated to states. Okay, about 18%, wherein the states have complained about the compromising nature of fiscal federalism in India. So that is why these articles were in news, and we should also know the difference between these article 288, 270 and 275. So answer to this question is B. Grants under 282 are discretionary, while Article 270 and 275 deals specifically with tax devolution based on Finance Commission recommendation. So answer will be B, but let us see the explanation. So अभी सेंटर ने कुछ कट्स किए हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के लेआउट में अराउंड 18% ऑफ द बजट एस्टिमेट ऑफ द स्कीम. क्यों? बिकॉज जो पास्ट ट्रेंड्स देखे गए हैं, जो पास्ट ट्रांसफर्स देखे गए हैं, उसमें बहुत सारा अमाउंट आज भी अनस्पेंट है. एज अ रिजल्ट सेंटर हैज डिड दिस कट. बट आर्टिकल हमें क्या देखना है? बेसिक्स देखने हैं. बेसिक्स में हम देखेंगे सबसे पहले आर्टिकल 282. तो 282 क्या कहता है कि यूनियन एंड स्टेट्स किसी भी पब्लिक पर्पस के लिए ग्रांट्स दे सकते हैं, इवन दैट पब्लिक पर्पस इज आउटसाइड देयर लेजिस्लेटिव डोमेन. तो ये जो ग्रांट्स होते हैं ये डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स होते हैं. ठीक है, इनके लिए लॉ नहीं पारित करना होता है और ना ही फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन लेनी होती है. एक ग्रांट्स दिए जाते हैं जो टैक्स कलेक्शन आता है यूनियन से स्टेट्स को, वो आपकी फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पे होते हैं. तो वो जो टैक्स डेवल्यूशन होता है, स्टेट्स को पैसा जाता है, जितना टैक्स कलेक्ट होता है, जो फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है, वो आपका आर्टिकल 270 एंड 275 के अंडर होते हैं. ये डिस्क्रिशनरी नहीं होते हैं यूनियन के. ठीक है, जो 282 के अंदर ग्रांट्स होते हैं वो बेसिकली इंट्रोड्यूस किए गए थे, कोई कंटिंजेंसी आ जाए या किसी तरह से कोई स्कीम चलानी हो आने वाली सेंट्रल गवर्नमेंट्स को, उसके लिए. सो दिस डिफरेंस वी नीड टू see between the article 282 and 275. Plus there is one more case where, especially this Beam Singh case 2010, where Supreme Court has held union government's power to give discretionary grant even beyond the finance commission recommendation under article 282. As well as there is another case, Ram Javaya Kapoor case, where this expenditure from consolidated fund of India legally justifies the grants made under 282. तो मतलब जितने भी ग्रांट्स 282 के अंदर किए जाएंगे वो तो एक तो फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन नहीं चाहिए, प्लस दे आर
legally justified, plus they are discretionary, they are not necessary to take permission. Now coming to our next question, which of the following countries are members of BIMSTEC? इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। चाइना देख के, ठीक है, तो चाइना इज नॉट द मेंबर। इसमें जो आपके मेंबर्स हैं, इंडिया, नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल एंड भूटान। तो आंसर इज बी। हमें ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो इतनी फेमस है उनका नाम, मेंबर्स हमेशा याद रखने हैं। क्यों ये बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में है? बिकॉज फर्स्ट टाइम एवर बिम्स्टेक का जो यूथ समिट है दैट हैज अकर्ड इन गांधीनगर, गुजरात। दिस वाज द न्यूज पब्लिश्ड इन PIB, the source of the news. And the theme of this youth summit was youth as a bridge for intra BIMSTEC exchange. ठीक है, and other themes that were focused upon is, एक तो youth centric focus था इस summit का, and there was a startup network that was proposed by India to boost the innovation and entrepreneurship. ठीक है, तो why BIMSTEC is important? Because 60% of BIMSTEC population comprise of your youth. So this youth summit becomes very important. Okay, with respect to our next question, what makes Bombay blood group unique compared to other blood groups in ABO system? सो हमारे यहाँ जो ब्लड ग्रुप कैटेगराइजेशन का सिस्टम है दैट इज कॉल्ड ABO ब्लड ABO सिस्टम। अभी रिसेंटली बॉम्बे ब्लड ग्रुप बहुत न्यूज में रहा है बिकॉज एक लेडी का ट्रांसप्लांट हुआ है, किडनी ट्रांसप्लांट, विच हैज बीन सक्सेसफुली कंडक्टेड विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ ब्लड डोनेशन, एंड ये ब्लड ऑलरेडी बहुत रेयर होता है इसको मिलना। सो दैट इज वाई दिस ब्लड ग्रुप इज इन न्यूज। तो ये हमारा कौन से टॉपिक से रिलेटेड है? जनरल साइंस से। जनरल साइंस में ब्लड ग्रुप आपके आते हैं तो हमें इसलिए पता होना चाहिए। एंड आंसर इज व्हाई दिस ब्लड ग्रुप इज सो रेयर? बिकॉज A and B antigens, it has A and B antigens and no H. It lacks A, B and H antigen, which prevents the formation of A, B और O एंटीजेंस। तो इसमें तीनों ही टाइप के एंटीजेंस नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं। दिस बॉम्बे ब्लड ग्रुप लैक्स H एंटीजन विच इज एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ A, B, O एंटीजेंस। तो इसमें एक टाइप का एंटीजन होता है H एंटीजन जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप में नहीं मिलता है, जिसकी वजह से ना तो A, B और O टाइप के ब्लड ग्रुप बन पाते हैं। ठीक है, ये ब्लड ग्रुप सिस्टम जो पहले फाइंड आउट हुआ था वो किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर में इन 1901, which has improvised our understanding for transfusion and the blood compatibilities to be done if we need to donate or receive any blood donation। तो हम जो compatibility test करते हैं वो इन blood group की वो बहुत better understanding हो गई थी with understanding of this ABO system। ठीक है, individuals with Bombay blood group cannot receive any blood from A, B, AB or O blood group, including O negative, because all these blood types include H antigen। So AB ये जो आपका ब्लड ग्रुप है बॉम्बे ब्लड ग्रुप, ये किसी से ही भी ब्लड नहीं रिसीव कर सकते, ना तो A से, ना B से ब्लड ग्रुप से, ना O पॉजिटिव, नॉट इवन O नेगेटिव, बिकॉज सबके पास H एंटीजन है एंड बॉम्बे ब्लड ग्रुप में H एंटीजन नहीं होता है। हम कुछ कंपैटिबिलिटी भी देख सकते हैं, कई बार ये क्वेश्चन भी आया हुआ है यूपीएससी में पहले कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको डोनेट कर सकता है, किससे ले सकता है। तो A प्लस जो होता है वो A प्लस से ले सकता है, AB प्लस से दे सकता है AB प्लस को, एंड रिसीव कर सकता है A प्लस, A माइनस, O प्लस, O माइनस। सो दिस इज अ चार्ट where you can pause the video and then take a picture and then study। so ये जो आपका now next question is with respect to recently concluded in India's Prime Minister Modi's visit to USA, where certain initiatives were taken
So one of the initiative taken was trust initiative. So the question is, which of the following is true regarding objectives of trust initiative? So answer is, the initiative addresses the diversification of supply chain for critical minerals like lithium and rare earth metal elements. And this is, your answer is B. Let us see अभी क्या हुआ है. मोदी जी जब विजिट पे गए हैं, एक ऑफिशियल विजिट यूएस की, तो ट्रस्ट का सबसे पहले फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग द स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी. तो इट इज द बायलैटरल अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूएसए. इसका काम क्या है कि वी विल बी कोऑपरेटिंग मोर इन द सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स. क्रिटिकल मिनरल्स कौन से हैं? ये वो मिनरल्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल की इंडस्ट्री, जैसे सेमीकंडक्टर्स, चिप्स और इन सब में, बैटरीज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड मोस्टली जो कंट्रीज हैं, इसका जो सप्लाई चेन है वो कंट्रोल कौन करता है? मोर देन 90% इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय योर विच कंट्री? चाइना. तो डिपेंडेंसी चाइना पे रिड्यूस करने के लिए ऑन द सप्लाई चेन, India and US are building upon this partnership, and there is another participation which India has done in Mineral Security Partnership and Mineral Security Finance Network, which is also related to the supply chain diversification of critical minerals. ठीक है, तो this trust initiative will reduce dependence on China and will facilitate technology transfer. क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट विजिट थी, बहुत हाईलाइट हुई थी. लेट अस सी द other events, other major cooperation agreements that have taken place. Number one, in the field of defense and security, there is a new 10-year framework for major defense partnership. ठीक है, एक साइन हुआ है जिससे कि इंडिया और यूएस के आर्म्स एंड डिफेंस सिस्टम्स में इंटरऑपरेबिलिटी बढ़े, आपस में यूज कर सके, प्लस को प्रोडक्शन कर सके. प्लस देयर वाज टॉक्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ डिफेंस सेल्स to India, and there was also one launched Asia initiative, that is Autonomous System Industry Alliance, to co-develop AI based counter UAS and marine defense system. तो ये एक इनिशिएटिव आपका एशिया इनिशिएटिव है, एक है न्यू 10-year framework that has occurred in the defense sector. Next is, with respect to trade and economic partnership, there is new launch of Mission 500, which sets to target to double, which sets a new target to double the trade to 500 billion between India and US by 2030. आप इसे मेंस के आंसर में भी कोट कर सकते हैं कहीं IR में. Then there is a agreement to negotiate the BTA विद रिस्पेक्ट टू जो भी ट्रेड वाले जो हमारे अग्रीमेंट्स होते हैं यूएस के साथ, उनको रीनेगोशिएट करेंगे टैरिफ को रिड्यूस करने के लिए एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स को, सो दैट इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड ट्रेड बढ़े इंडिया यूएस के बीच में. नेक्स्ट इज एनर्जी एंड सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन वाले सेक्टर में हमने जो एक अग्रीमेंट किया है कि यूएस हमें क्रूड ऑयल, एलएनजी, हाइड्रोकार्बन सप्लाई करेगा. ठीक है, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए. प्लस वी विल ऑल्सो design together some nuclear reactors, with India amending this civil liability for nuclear damage act. ठीक है, जो ये 2005 का एक एक्ट है, इसको अमेंड करा जाएगा और इंडिया यूएस न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी डिजाइन करेंगे. नेक्स्ट हमने देखा ट्रस्ट इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है. प्लस देयर इज वन नासा इसरो कोलैबोरेशन प्लान्स फॉर इंडियन एस्ट्रोनॉट्स, जो कि ISS पे जा सके. ISS क्या है? आपका स्पेस स्टेशन है. ठीक है, जिसमें 3-4 कंट्रीज कोलैबोरेट करती है, वहां पे इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जा सके, ऐसा प्लान किया गया है. प्लस देयर इज वन मोर निसार सैटेलाइट मिशन दैट विल बी cooperated upon by the two countries. So these are the other agreements that has concluded on this recent official visit by PM Modi and with Donald Trump on the US side. Now, with respect to our mains question, since एग्रोफॉरेस्ट्री पे हमारे बहुत सारे एडिटोरियल्स आ रहे हैं अभी रिसेंटली हिंदू में, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं. ये आपका
जीएस पेपर 3 के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट में, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है. द क्वेश्चन इज agroforestry has potential to contribute significantly to India's climate change mitigation and rural economic development. Discuss the benefits, challenges and way forward to unlock its full potential. तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, एग्रो फॉरेस्ट्री के ऊपर है. तो हम एक्सप्लेन करेंगे इन द इंट्रोडक्शन व्हाट इज एग्रो फॉरेस्ट्री. अब उन्होंने क्या पूछा है, क्वेश्चन में क्या बोला है, इट कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो हम ये जस्टिफाई करेंगे स्टेटमेंट कि हाउ इट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू योर climate change mitigation and rural economic development. Then we will discuss its benefits. What are the benefits? What are the challenges in India? And what are the way forward which could unlock the potential of agroforestry fully. तो हमारा 3-4 पार्ट में ये पूरा आंसर लिखा जाएगा. तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, एग्रोफॉरेस्ट्री क्या होती है. क्या होती है एग्रोफॉरेस्ट्री? मीन्स जो आपकी एग्रीकल्चर क्रॉप्स जिस जमीन पे आप ग्रो करते हैं उसी जमीन पे फॉरेस्ट्री वाला ट्रीज एंड श्रब्स भी ग्रो करें along with agricultural crops. So if there is some land where crops are grown, then on the corner of that agricultural field we can also grow some trees. So हमारा इससे क्या फायदा होगा, इससे हमारा रेवेन्यू इंक्रीज होगा, सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट होगा, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द लैंड, है ना, प्लस हमारा एनवायरमेंटल बेनिफिट होगा, ट्रीज लगेंगे तो ट्रीज आपके कार्बन डाइऑक्साइड को सीक्वेस्टर करते हैं, प्लस देयर विल बी इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट्स. सो एग्रोफॉरेस्ट्री का कितना पोटेंशियल है? in India, agroforestry covers 28.4 million hectares, contributing significantly to carbon sequestration and rural livelihood. तो जो फॉरेस्ट होते हैं उनसे कोई जो प्रोडक्ट होते हैं वो भी फार्मर्स बाहर सेल कर सकते हैं मार्केट में, प्लस कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन तो हो ही रहा है. और कितने एरिया में आज के टाइम पे एग्रोफॉरेस्ट्री चल रही है? 28.4 million hectare. However, despite its potential, it is facing some challenges. ऐसे करके आप एक डायग्राम बना सकते हो, ठीक है, कि एग्रोफॉरेस्ट्री क्या है, फिर इतना आपको एक डेटा फैक्ट दे दिया है, ठीक है. डेटा फैक्ट के ब्रैकेट में आप सोर्स लिख देंगे, दैट फ्रॉम रीसेंट फॉरेस्ट रिपोर्ट रिलीज्ड, ठीक है. फिर हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, व्हाट इज द बेनिफिट्स. इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स लिखेंगे, उसमें क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड सीक्वेस्ट्रेशन. सो इंडिया का कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन स्टॉक का इंक्रीज होगा, कार्बन फुटप्रिंट कम होगा, जो क्लाइमेट चेंज है वो डिक्लाइन होगा, ठीक है, फ्रेश एयर तो सीक्वेंस आएगी. तो इससे क्या हो गया, हमारा जो INDCs हैं पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट के अंदर वो भी हम फुलफिल कर पाएंगे, ठीक है. और जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज होते हैं उनसे सॉइल एंड वाटर रिटेंशन हो सकता है, सॉइल हेल्थ बेटर होती है आपकी, लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. अनदर थिंग इज लैंड रिस्टोरेशन, जो सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट, ठीक है, एफॉरेस्टेशन, रीफॉरेस्टेशन एंड रीवेजिटेशन के प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं. बायोडाइवर्सिटी विल बी इम्प्रूव्ड and extreme weather event can be controlled. So these will be the environmental benefits. Next is economic benefit, जो भी उन पेड़ों में से minor forest produce होंगे, the farmers could sell. This will reduce their dependence on just agricultural crops which are monsoon dependent. So वो side में forest जो उगाएंगे उससे भी अपना income stabilize कर सकते हैं. प्लस दिस विल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू कार्बन फाइनेंस. कैसे कि मार्केट प्लेयर्स जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनके साथ हाथ मिलाया जा सकता है विद द फार्मर्स. तो जो अपने जो जिनका जमीन है वो उस जमीन को मोनेटाइज कर लेंगे, मींस उस जमीन के पैसे लेके कंपनीज को बोला जाएगा कि आप आके पेड़ लगा दीजिए, ठीक है. क्योंकि कंपनी के ऊपर क्या होता है, एक
अपना कार्बन जो एमिशंस होते हैं उनको कम करने के टारगेट्स, तो कंपनी के टारगेट पूरे हो जाएंगे, फार्मर और जिसकी जमीन है उसको पैसा मिल जाएगा। इससे हमारा कार्बन क्रेडिट मार्केट भी स्ट्रेंथन होगा। ठीक है, एंड ऐसी एक स्कीम गवर्नमेंट ने चला भी रखी है, कार्बन क्रेडिट स्कीम। प्लस रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या है, हम जो प्रोड्यूस होते हैं उसको प्रोसेस कर सकते हैं तो नया एम्प्लॉयमेंट आएगा। ठीक है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं, मार्केट लिंकेज डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो नए नए अपॉर्चुनिटीज कैन बी ओपनड अप। नाउ नेक्स्ट इज चैलेंजेस क्या है। पहली चीज है अवेयरनेस नहीं है अबाउट दिस एग्रो फॉरेस्ट्रीज बेनिफिट, स्पेशली अमंग द स्मॉल लैंड होल्ड फार्मर्स। दूसरी चीज, उनको कैसे ये ट्रेनिंग नहीं है कि कौन सी क्रॉप के साथ कौन सा पेड़ आएगा। ठीक है, कैसे मैनेजमेंट करेंगे, कैसे मार्केट को एक्सेस करेंगे, इनिशियल कॉस्ट ट्री को ग्रो करने की, सीड रिक्वायरमेंट, फेंसिंग, ये सारी बहुत ज्यादा होती हैं। प्लस इतना ज्यादा छोटी छोटी लैंड होल्डिंग्स हैं, 86% फार्मर्स जो इंडिया है में हैं, दे हैव लेस देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। तो ये फॉरेस्ट एग्रो फॉरेस्ट्री को उसमें फार्मर किसान क्या क्या कर ले, है ना, तो ये इंटीग्रेट करना एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है। ठीक है, लैंड अवेलेबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू है। प्लस वाटर स्केर्सिटी, ठीक है, स्पेशली इन द ड्रॉट प्रोन। तो अगर पानी डाइवर्ट हो जाएगा जमीन के नीचे से पेड़ को, तो आपकी एग्रीकल्चर क्रॉप भी अफेक्ट हो सकती हैं। ठीक है, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं, हमें अगर नॉलेज नहीं होती तो वो पानी ज्यादा रिक्वायर करते हैं, तो दैट कुड अफेक्ट योर क्रॉप्स। प्लस दे आर इनकम्पैटिबल ग्लोबल का विद carbon finance mechanism. Global carbon finance platform like Verra and Gold Standard use a common practice to assess the carbon sequestration activities. ठीक है, तो इनके कोई स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं, दो कंपनीज हैं, बट इस स्टैंडर्ड को हम अपने एग्रो फॉरेस्ट्री के स्टैंडर्ड में कैसे लिंक करें। ठीक है, कैसे एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करें अक्रॉस होल इंडिया। ठीक है, जहां पे हमारा फार्मिंग सिस्टम इतना डिसइंटीग्रेटेड है। ठीक है, तो दैट इज अ बिग चैलेंज। सो व्हाट हाउ वी कैन conclude, we need to redefine the carbon credit और carbon finance criteria। हम जो ग्लोबल प्रैक्टिसेस में है वही अडॉप्ट कर सकते हैं। फार्मर्स की अवेयरनेस बढ़ानी है, उनको ट्रेनिंग देनी है, कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे। ठीक है, वर्कशॉप, ट्रेनिंग, एक्सटेंशन सर्विसेज, ऐसे करके ट्री क्रॉप कंपैटिबिलिटी के ऊपर उनको पढ़ाना है फार्मर्स को। दूसरी चीज, गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड सब्सिडी, लो इंटरेस्ट लोन्स एंड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की वो अपने जमीन में एग्रो फॉरेस्ट्री करें और कार्बन फाइनेंस मैकेनिज्म का उनको फायदा दिखाया जाए। ठीक है, कि वो उनकी अपनी कैसे पैसा बढ़ा सकते हैं, फार्मर्स का डबल इनकम हो सकती है। ठीक है, जब तक ये नहीं करेंगे तो हम फार्मर्स को मोटिवेट नहीं कर पाएंगे कि एग्रो फॉरेस्ट्री को अडॉप्ट करो। प्लस देयर विल बी रिक्वायरमेंट ऑफ न्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री, जिससे कि नए नए सिस्टम्स हम डेवलप कर सकें। प्लस इस पूरे सिस्टम में अगर इंस्टीट्यूशनल गवर्नमेंट का पॉलिसी सपोर्ट नहीं होगा तो बहुत दिक्कत होगी। तो गवर्नमेंट की साइड से पॉलिसी सपोर्ट किस फॉर्म में चाहिए, देयर नीड टू बी अ लैंड टेन्योर सिक्योरिटी। ठीक है, हमें जो डिस्प्यूट्स होते हैं, लैंड डिस्प्यूट्स, उनको कम करना है। अभी डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स ऑलरेडी चल रहा है। एंड वी कैन ऑल्सो टेक हेल्प ऑफ global leadership and the global practices. We can also take help of those global practices. तो आप conclude कैसे करेंगे? Agroforestry holds a significant potential in India, but what India needs is the comprehensive approach that involves policy reform, financial incentives, and strong institutional support to realize its full potential and can even, मतलब आप डाल सकते हैं इसमें कोई भी स्टेटमेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का, जैसे कि सबका साथ सबका विकास, डबल फार्मर इनकम। ठीक है, एंड
सबको साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ऐसे करके कुछ भी आप डाल सकते हैं, एक कोई लाइन। ठीक है, दिस इज हाउ यू विल conclude this answer, and you can also add any report recommendations if you know. Then this was all in today's discussion. Let us end this discussion. Thank you very much.